जम्मू के किश्तवाड़ में हुए हिंसा के 4 दिन बाद आज राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया। चिदम्बरम ने राज्यसभा में कहा कि उस दिन करीब 10:30 बजे लोगों ने जुलूस निकाला। जुलूस में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, साथ ही दो गुटों के बीच पत्थरबाजी भी हुई थी। हंगामे के बाद पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। दोपहर बाद सेना भी उतारी गई। दो गुटों में हुए हंगामे के बाद धीरे धीरे हिंसा पूरे शहर में फैल गई। चिदम्बरम ने बताया कि हिंसा में 3 लोग मारे गए हैं और 29 लोग घायल हुए हैं। हिंसा में कई घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी समुदाय विशेष पर आरोप लगाना सही नहीं है। जम्मू कश्मीर में ये कोई नई बात नहीं है। सरकार की तरफ से पी चिदम्बरम ने यह जवाब दिया है सदन के अंदर, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार से इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहा था, सरकार से जवाब मांग रहा था। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली के भाषण के बाद पी चिदम्बरम ने यह बयान दिया। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर पी चिदम्बरम किश्तवाड़ मसले पर कुछ कह रहे हैं। The Ministry of Commerce's estimates of exports and imports and of the trade gap. Based on these consultations, we have estimated the CAD for the current year and have decided on certain measures that will ensure that the CAD will be fully and safely financed in the current year. The measures that we will take to reduce the CAD include 1. Compression in import of gold and silver. 2. Compression in demand for oil. 3. Compression in certain imports of a non-essential nature. We will also take measures to enhance the capital inflows into India, and these will include 1. Public sector financial institutions to raise quasi-sovereign bonds to finance long-term infrastructure. 2. Liberalizing ECB guidelines. 3. PSU oil companies to raise additional funds through ECBs and trade finance. 4. Liberalizing NRE, FCNRE deposit schemes. As a result of these measures, we expect that the CAD will be contained at $70 billion, while the inflows will increase to a level that will be sufficient to finance the CAD. We also expect that, like last year, there will be a small accretion to reserves at the end of the current year. If the CAD is contained at $70 billion, it will amount to 3.7% of GDP as against 4.8% in 2012-13. Notifications in respect of tariff rates will be laid before Parliament in the usual course. Administrative measures, as and when taken by the competent authority, will be put in the public domain. I am sure I can count on your support for the measures that we intend to take. और सदन की कार्यवाही 13 अगस्त 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बतौर गृह मंत्री के रूप में सदन में यहां बयान दिया। राज्यसभा में पहले उन्होंने बयान दिया, उसका लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने बताने की कोशिश की कि सरकार ने क्या कदम उठाया है किश्तवाड़ हिंसा के बाद। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा में पी चिदम्बरम ने क्या बयान दिया था। Kishtwar town has been reported. Sir, in the clashes between the two communities and violence till the evening of 9th August, 2 persons, one belonging to one community and the other belonging to the other community, were killed, and I deeply regret these deaths. 29 others, including 3 security force personnel and 1 DSP, were injured. Of the 29 injured, 4 persons who suffered pellet injuries were taken to the Army Command Hospital. Others are being treated in the civil hospital. 3 other persons are being treated in a hospital at Srinagar. Some shops, houses and some vehicles were set ablaze by the rioters. और चलिए इस वक्त सीधे रुक कर सकते हैं रमन कुमार का, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। रमन, जो बयान यहां पर बतौर गृह मंत्री चिदम्बरम ने यहां पर सदन में दिया है, क्या विपक्ष उससे संतुष्ट है? क्योंकि वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि सरकार ने कदम उठाया, लेकिन साथ ही ये भी बात वो कह रहे हैं कि कश्मीर में हिंसा कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, पी चिदम्बरम का ये बयान कहीं न कहीं एक रक्षात्मक मुद्रा में सरकार दिख रही थी, और जिस तरह की घटना किश्तवाड़ में हुई थी, ईद के दिन हुई थी,
इस बात को स्वीकार किया, पी चिदम्बरम ने, सरकार ने स्वीकार किया कि वहां पे देश विरोधी नारे लग रहे थे और दूसरा पक्ष को इस बात पर आपत्ति थी कि आखिरकार देश विरोधी नारे ईद के दिन क्यों लग रहे हैं और इसी बात पे हिंसा की घटनाएं हुई। कहीं न कहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर है। राज्य सरकार को इस बात की जानकारी थी, खुफिया जानकारी थी कि किश्तवाड़ में इस तरह की घटनाएं हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं होने के चलते ऐसी घटनाएं हुई। क्योंकि आपने सुना होगा कि सुषमा स्वराज, विपक्ष नेता सुषमा स्वराज और उमर अब्दुल्ला के बीच में लगातार ट्वीट पे बातचीत होती रही थी। सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि किश्तवाड़ में सब कुछ सामान्य नहीं है, राज्य सरकार की तरफ से, पुलिस फोर्स की तरफ से सही रवैया नहीं अपनाया गया। कहीं न कहीं ये मामला ऊपर लेवल से ईद के दिन से ही जारी था और उसके बाद अरुण जेटली, राज्यसभा विपक्ष के नेता, जब वहां पहुंचे उन्हें जाने नहीं दिया गया। आज पूरे मामले को अरुण जेटली ने विस्तार से सदन के सामने रखा, राज्यसभा में सामने रखा कि किस तरह से वहां पर राज्य सरकार का ढीला रुख रहा है, ढीला रवैया रहा है। लेकिन पी चिदम्बरम का ये बयान अपने आप में गैर जिम्मेदाराना बयान है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दायित्व है कि हर एक आम आदमी को सुरक्षा प्रदान करना। और अगर किश्तवाड़ में 3 लोगों की जानें गई हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, उसकी जानों का उत्तरदायित्व भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होती है। बिल्कुल, सरकार ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि वहां पर हिंसा कोई नई बात नहीं है, हिंसा वहां पर लगातार होती रहती है। रमन, क्या आपको लगता है कि इसके बाद अब विपक्ष इस मसले को जाने देगा या फिर आपको लगता है कि कल जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो फिर इसी तरीके का हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए, अब अभी विपक्ष का रुख अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल जो संकेत उभर कर सामने आ रहा था उसके मुताबिक विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है और विपक्ष के नेताओं की एक बैठक होने वाली है, उसमें वो अगली रणनीति पर खुलासा करेंगे। क्योंकि आज फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन किश्तवाड़ में जो घटनाएं हुई उस घटनाओं को देख